إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج اس عظیم الشان کانفرنس میں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ میں والدین اور اولاد کا کیا کردار ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سورہ تغابن کی 15 نمبر آیت، جس میں اللہ کہتا ہے کہ بے شک آپ کا مال، آپ کی اولادیں آپ کے لیے آزمائشیں ہیں. اگر ان آزمائشوں میں کھرے اترو گے، اپنے مال اور اپنی اولاد کا حق کما حقہ ادا کرو گے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ رب العزت کے پاس اس کا بہترین آپ کے پاس اجر ہے. لیکن سورہ منافقون کی 9 نمبر آیت میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو یہ جان لو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہ جن میں سے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے، مال کمانے کے جوش میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ، اولاد کے لاڑ اور پیار میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ آپ اللہ سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں رہے گا. 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت سورہ تغابن کی 15 نمبر آیت ہے، دوسری آیت سورہ منافقون کی 9 نمبر آیت. پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، جو اس کے حق ادا کریں گے اللہ کے پاس بہترین اجر پائیں گے. دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے کہ یہ مال، یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کریں گے قیامت میں خسارہ پائیں گے. پتہ یہ چلا کہ ہمارا یہ مال، ہماری یہ اولاد، اگر اس کا صحیح استعمال ہم کریں گے، اللہ ہم کو اس کے بدولت جنت عطا فرمائے گا اپنے رحم و کرم سے. اگر یہ مال و اولاد کو اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس کا ناجائز استعمال کیا تو یہی مال، یہی اولاد ہمیں جہنم تک پہنچا دیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کی دیے جانے والے انعامات میں، تحفوں میں سب سے عظیم تحفہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کے بعد، صحت و عافیت کے بعد اللہ کی جانب سے اس دنیا میں ملے جانے والے تحفوں میں نیک بیوی اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ اولاد ہے. اولاد والدین کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. جا کر ان والدین سے پوچھئے، ان میاں بیوی سے، کروڑ پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، لیکن ان کے یہاں ایک اولاد نہیں ہے. وہ ایک اولاد کی خاطر کروڑوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں. کبھی ہوموپتی، کبھی آلیوپتی، کبھی آیورویدک، ہما قسم کے علاجیں کر رہے ہیں، لیکن ایک اولاد نہیں ہے. ان کے لیے ساری دنیا تاریکی ہے. پوچھو اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے ان سے جن کو اولاد نہیں ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم میں سے جتنے بھی یہاں جمع ہیں، ماشاءاللہ 90% صاحب اولاد ہیں. اللہ کا نعمت، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا. صاحب اولاد ہونے کے بعد ایک والدین کی جانب سے اولاد کو دیے جانے والے تحفوں میں
سب سے عظیم تحفہ دینداری، نیک تربیت، اونچے اخلاق اور اچھے کیا ہے اللہ کا تقوی ہے جو ایک والدین اپنے بچوں کو عطا کریں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ڈگریاں بنا لوں گا، اس کے نام بڑے بڑے سائٹ خرید کر بلڈنگیں کھڑا کروں گا، اس کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے گھر بسا دوں گا، یا اس کا کہیں امریکہ میں، آسٹریلیا میں، آؤٹ آف کنٹری میں جاب سیٹ کر دوں گا اور اس کی زندگی سیٹل کر دوں گا تو میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی کی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے لیے ایک والدین ہونے کے ناطے 4 سوالات اللہ تعالیٰ کرے گا۔ پہلی ذمہ داری، والدین کو جب اولاد ہوگی تو 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے اور اس کا ایک اچھا نام رکھنا ہے، اور اس کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے سر منڈا کر اس کے بال کے تول کے برابر چاندی صدقہ دینا ہے۔ دوسری ذمہ داری، آپ والدین ہونے کے ناطے اس کا نان و نفقہ آپ کو برداشت کرنا ہے۔ تیسری ذمہ داری، اس کو دین کی تعلیم دینا ہے، اخلاق اور آداب اور اللہ کا تقوی اس کو بتانا ہے، حلال کیا، حرام کیا، نیکی کیا، بدی کیا، جنت کیا، جہنم کیا، اچھا کیا، برا کیا، اسلام کیا، توحید کیا، شرک کیا، سنت کیا، بدعت کیا، یہ بتانا ہے، کیونکہ قیامت میں اللہ پوچھے گا فَأَحْسَنَهُنَّ وَعَدَّهُنَّ، کیا تو نے اسے دین کی تربیت کی، کیا اسے دین کی تعلیم دیا؟ یہ تیسری ذمہ داری ہے آپ والدین کی۔ اور چوتھی ذمہ داری، ان کے بلوغت کے بعد ان کا کسی اچھی جگہ توحید گھرانے میں دیکھ کر ان کا نکاح کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا، جسے چاہے جلد دیتا ہے، جسے چاہے تاخیر سے دیتا ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور زکریا علیہ السلام کی زندگی۔ 80 سال کے عمر کے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا حب لنا ربی حب لی من الصالحین، اور 90 سال سے زائد ہو گیا زکریا علیہ السلام کی عمر، وہ دعا مانگ رہے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ رب العزت ان 2 انبیاء کی دعائیں سنتا ہے، ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام عطا کرتا ہے اور زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے میں عطا کرتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر یہی بچے آپ کے دیندار بنیں گے، نیک بنیں گے، بچپن سے ان کی نیک تربیت آپ کرو گے، اللہ کی قسم یہ اولاد آپ کو جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا، ان کی صحیح تربیت آپ نے نہیں کی، ان کو دینداری نہیں سکھائی، تو یاد رکھنا یہی اولاد آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے مسلمانوں کا اکثریت کا طبقہ مدرسوں کے مزاج سے بڑا ہی کراہیت محسوس کرتا ہے۔ مدرسے میں غریب ماں باپ کے بچے پڑھتے ہیں، مدرسے سے پڑھ کر نکلے گا تو کیا کمائے گا، کسی مسجد کا امام بنے گا، کہیں تراویح پڑھانے جائے گا، 10-15 ہزار ملیں گے۔ اگر میں اپنے بیٹے کو انجینئر ڈاکٹر بناؤں گا، لاکھوں کا کمائے گا۔ مجھے عالم بنانا نہیں ہے، حافظ بنانا نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے۔ وہ عالم اور حافظ کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انجینئر اور ڈاکٹر کو بڑے اونچی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قسم رب کعبہ کی، یہ دنیا کی ڈگریاں، چاہے اسلام آپ کو انجینئر بنانے سے نہیں روکتا، اسلام آپ کو ڈاکٹر بنانے سے نہیں روکتا، ضرور اپنے بچوں کو انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، لائر یا جو بنانا ہے بنائیے، لیکن سب سے پہلے ان کو دیندار بنائیے، ان کو نماز، روزہ، اللہ کا قرآن، بچپن کی دعائیں، روزمرہ کی دعائیں اور اپنے اسلام کی شعار کے مطابق تقوی والی زندگی گزارنے کا سلیقہ، تہذیب ان کو سکھائیے۔ اس کے بعد جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے۔ کتنی ایسے مثالیں ہیں، بیٹا انجینئر بن گیا، باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے، لیکن بیٹے کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا توفیق نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ان سے پوچھا، آپ کا باپ کا جنازہ مسجد میں ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اندر آئیے۔ نہیں وہ کیا پڑھتی، کوسی تکبیر میں کیا پڑھنا، مجھے کچھ نہیں آتا، آپ جائیے پڑھ لیجئے۔ نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی حضرت کو، بہت بڑے انجینئر بن گئے ماشاءاللہ۔ ابھی KBC کا ایک پروگرام چل رہا تھا کافی سال پہلے، امیتابھ بچن کا۔ اس میں امیتابھ بچن ہاٹ سیٹ پر بیٹھے ایک مسلمان سے سوال کرتا ہے، تمہارے محمد صاحب کے والد کا نام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے نبی کے والد کا نام کیا؟
हॉट सीट पर बैठा हुआ एक नाम निहाद मुसलमान है, उसके सामने 4 ऑप्शन है, एक नबी का नाम, एक नबी के दादा का नाम, 2 नबी के चाचा का नाम। उसे नहीं मालूम था, 50-50 लाइफ लॉन्ग उसने लिया, 2 गलत आंसरों, गलत जवाबात को क्या है, सवालात को हटा दिया गया। अब बचा था एक नाम नबी का, एक नाम दादा का। अगर वो इत्तेफाक से नबी का नाम भी छू लेता थोड़ी इज्जत तो बाकी रहती, लेकिन इत्तेफाक से अंदाजे से जो उंगली उसने रखा नबी के दादा पर उसने चॉइस किया। कितने अफसोस की बात है, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं हम, बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं, हमारे नबी के बाप का नाम क्या हमको नहीं मालूम। अल्लाहु अकबर। जिस हाफिजे कुरान को, जिस आलिम दीन को आज दुनिया में इतनी हकीर निगाह से आप देखते हो, क़यामत के दिन वो माँ बाप अफसोस करते हुए पछताएंगे जब मैदान महशर में हाफिजे कुरान बच्चे को लाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मस्जिद मदरसे मोहम्मदिया जो आज का उस मदरसे के सालाना जलसे के नतीजे में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, और इस मदरसे मोहम्मदिया के 4 तलबा अभी थोड़ी देर के बाद दस्तारे बंदी सनद आपके सामने हासिल करेंगे। कितने खुश नसीब है वो माँ बाप, कयामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके वालिदैन को इनके बच्चों के सामने बुलाएगा, इनके वालिदैन के लिए नूर के मिंबरों को अल्लाह ताला रखेगा, जन्नत का लिबास अल्लाह उनको पहनाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि सोने चांदी का, हीरे मोतियों का अल्लाह तबारक व तआला ताज हाफिज कुरान के हाथों इनके वालिदैन के सर पर अल्लाह पहनाएगा, जो सूरज और चांद से ज्यादा रोशन होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं वो हीरे मोतियों का ताज, उसमें का एक हीरा अब दुनिया मामा फीहा से बेहतर होगा। अल्लाहु अकबर। फख्र करेंगे हाफिज कुरान के वालिदैन। आज दुनिया में हाफिज को, हाफिज बनाने को, आलिम बनाने को हकीर जानने वाले वालिदैन ये जान ले, अपने बच्चों को हाफिज बनाकर इंजीनियर आप बना सकते हैं, हाफिज कुरान बनाकर डॉक्टर बना सकते हैं, हाफिज कुरान बनाकर दुनिया की डिग्रियां आप दिला सकते हैं, लेकिन नहीं, हम हाफिज नहीं बनाएंगे, आलिम नहीं बनाएंगे, जो बनाएंगे दुनिया परस बनाएंगे। बड़े अफसोस, बड़े ही अफसोस की बात है, आज हमारे बच्चों को बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको कुरान पढ़ने नहीं आता, रोमन इंग्लिश की कुरान खरीदते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु रोमन इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो अरबी पढ़ने नहीं आता। बचपन में हमारे वालिदैन ने हमको मस्जिद के मकतब को रवाना नहीं किया, इसीलिए हमने ना वहां अरबी सीखा, ना दुआएं सीखे, ना सूरे सीखे, अरे कुछ नहीं आता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, जो बच्चा आलिम दीन बनेगा, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया सही मुस्लिम की हदीस, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब भी कोई इंसान दुनिया में मर जाता है अल्लाह उसके नाम अमाल का सिलसिला खत्म कर देता है, लेकिन 3 रास्ते अल्लाह जारी और सारी रखता है। एक उनमें का वलदुन सालिह यदऊ लह, एक ऐसा नेक बच्चा, चाहे वो आलिम दीन की शक्ल में हो, खतीब की शक्ल में हो, क़ारी कुरान की शक्ल में हो, हाफिज कुरान की शक्ल में हो, दीनदार लड़के की शक्ल में हो, यदऊ लह, अपने वालिदैन के लिए दुआएं करने वाला, अपने वालिदैन के लिए दुआएं करने वाला। बचपन से हमने इंग्लिश गारमेंट को तरजीह देकर इंग्लिश गारमेंट में लगा दिया, बहुत बड़ा प्रोफेसर बना दिया, माँ बाप मर गए, माँ बाप के हक में कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए, वो 2 या 3 दुआएं नहीं आती हमारे बच्चे को। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिगफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये दुआएं क्या होती हैं, वालिदैन के हक में इसकी क्या दर्जा अहमियत रखती है, ये नहीं मालूम हमारे असरी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को। क्या फायदा ऐसे बच्चे जो आपने बनाया, आपने पाला पोसा बड़ा किया, दुनिया से चले गए, लेकिन आपकी औलाद की कोई नहीं की, आपके लिए सदका जारिया नहीं बन रही है। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, औलाद को कभी हकीर निगाह से ना देखें। हमारे मुस्लिम माशरे में आज भी जमाने जाहिलियत के दखियानूसी जहन रखने वाले लोग पाए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है कि जमाने जाहिलियत में लोग लड़की पैदा होने पर आर महसूस करते थे, लड़के पैदा होने पर खुशी का इजहार करते थे। वही दखियानूसी सोच रखने वाले आज भी लोग जिंदा हैं। लड़की हो गई चेहरा मुरझा जाएगा, लड़का हो गया लड्डू बांट कर
पटाखे फोड़कर, लोगों को इत्तला देकर, 2-2 बकरे उधार लाकर अकीका करेंगे, सबको इत्तला करेंगे, लड़कियों पर आर महसूस करेंगे। अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब इनको बशारत दी जाती कि इनके यहाँ बेटी हुई है, मारे शर्मिंदगी के इनका चेहरा काला हो जाता। यही मिजाज रखने वाले आज भी लोग हैं, ये जान लो। अल्लाह के नबी कहते हैं, जिसकी 3 बेटियां होंगी या जिसकी 2 बेटियां होंगी, अगर उसने पाल परवरिश करके उसे बड़ा किया, बगैर बोझ समझे उसका नानो नफका उठाया, उसे दीन की तालीम देकर उसके ससुराल ने एक रोश्ता देकर रवाना कर दिया, अल्लाह ताला 3 बेटियों के बाप को जन्नत में रवाना करेगा। एक सहाबी ने कहा, मेरी तो 2 बेटियां हैं, अरे अल्लाह के नबी क्या मैं नहीं जाऊंगा? आपने बयान फरमाया, मन आला जारियतैन औ उख्तैन काना मइया फिल जन्ना। जिसकी 2 बेटियां होंगी या जिसकी 2 बहनें होंगी, वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करे, अल्लाह ताला उसको, उस तौहीद परस माँ बाप को या उस तौहीद परस भाई को कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे रखेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बच्चों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बेटियों की परवरिश और इनके निकाह कर कर रवाना करने पर जन्नत की जमानत तौहीद परस्तों को अल्लाह दिया। और बेटा भी कोई कम नेमत नहीं है, बेटा भी अल्लाह की जानिब से अजीम नेमत है। दीनदार बनाओगे, नेक परस बनाओगे, आपके लिए ये बच्चे जब तक जिएंगे अपनी नेकियां आपके लिए सदक़ा जारिया बनाएंगे, मरने के बाद भी सदक़ा जारिया बनाएंगे। हाफिज़े कुरान बनाओगे तो इनके हाथों से हौज़े अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हीरे मोतियों का ताज पहनना नसीब होगा। इतना ही नहीं, असली तालीम हासिल करने वाले, एक छोटी मिसाल मैं देता हूं। आज जाइए, जितने भी बड़े बड़े कैपिटल सिटीज हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो या कोई भी चेन्नई हो, ये कलकत्ता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हर कैपिटल सिटीज के अंदर आपको बूढ़े आदमियों का एक हॉस्टल मिल जाएगा जिसे ओल्ड एज होम कहा जाता है। जाकर देखिए, यहां पर कभी 1 घंटा इन बूढ़े वालिदैन के पास बैठकर इंटरव्यू की शक्ल में पूछिए, क्या जुर्म था तुम्हारा, क्या गुनाह था तुम्हारा, किस लिए आज ओल्ड एज होम में दिन काट रहे हो? अल्लाहू अकबर। जो दर्द भरी दास्ताने वो बूढ़े वालिदैन ओल्ड एज होम में बैठकर बयान करेंगे, कसम अल्लाह की आपका कलीजा फट जाएगा, आपकी आंखें रोने पर मजबूर हो जाएंगी। वो बच्चे, वो माँ बाप ये कहते रहे, मेरे प्यारे बच्चे, आज तू नौकरी वाला हो गया, तेरी बीवी नौकरी वाली, हमको देखने वाला कोई नहीं, हमारी सेवा खिदमत करने वाला कोई नहीं। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, नौकर की शक्ल में घर में बैठूंगा, एक वक्त की रोटी दे दे, घर के किसी कोने में मैं खिदमत करते बैठूंगा, अपने नवासों पोत्रियों को खिलाते खिलाते बैठूंगा, मुझे किसी हॉस्टल के हवाले मत कर। नहीं पापा, तुम्हारी मिजाज से मेरी बीवी तंग आ चुकी है, अब तुम्हारा यहां रहना मुश्किल है। मेरी बीवी ने 2 ऑप्शन पेश किया है, या तो तुम्हारा बूढ़ा बाप रहेगा इस घर में या तो मैं रहूंगी, अगर वो रहेगा मैं निकल जाऊंगी। मेरे पापा, मैं अपनी बीवी बच्चों को तुम्हारे वास्ते नहीं छोड़ सकता, चुनांचे तुमको यहां से निकलना होगा और जाओ हॉस्टल में आराम से खाते पीते रहो, तुमको महीने को 10,000 20,000 जो भेजना भेज देंगे। क्या इस दिन के लिए उन्होंने पाला था? क्या इस दिन को देखने के लिए उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, फिलॉसफी और पता नहीं प्रोफेसर बनाया था? माफ करना, मैं हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर प्रोफेसर, हर असली तालीम हासिल करने वालों को टारगेट बना के नहीं बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे असली तालीम हासिल करने वाले बेहतरीन अखलाक के भी लोग हैं, लेकिन कम लोग ऐसे हैं, बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के साथ ओल्ड एज होम में ले जाकर पटक देते हैं और इनको ये धोखे से ले जाकर छोड़ देते हैं कि चलो हम तुमको घुमा के लाएंगे, और धोखे से लाकर ओल्ड एज होम में पटक कर निकल जाते हैं। वो रो रो कर कहते हैं, मेरे बच्चे, मुझे इस बुढ़ापे में अपने नवासों से जुदा मत कर, मेरे पोतरों से जुदा मत कर, लेकिन ले जाकर पटक देते हैं। अल्लाहू अकबर। ये बात अपने बयान में मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा चैलेंज है, जाइए हिंदुस्तान के किसी भी ओल्ड एज होम में देखिए, कसम अल्लाह की आपको एक भी हाफिज़े कुरान के वालिदैन, एक भी आलिम दीन के वालिदैन आपको ओल्ड एज होम में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए नहीं मिलेंगे, इन मदरसों में बचपन से उन बच्चों को यह सिखाया जाता है, यह पढ़ाया जाता है, प्यारे बच्चे कि बेशक
तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है और तेरा बाप तेरी जन्नत के दरमियानी दरवाजों में एक दरवाजा है। यह बचपन से मदरसे में उसके जहन में बिठाया जाता है। भला वो प्यारा बच्चा अपने जन्नत जैसे माँ बाप को ओल्ड एज होम जैसी जहन्नम में छोड़ना गवारा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, ये बात मैं फख्र से कहता हूँ, अल्लाह ने, मेरे वालिदैन ने मुझे आलिम दीन बनाया। आप भी अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, दीन के दाई बनाइए, कम से कम दीनदार जरूर बनाइए, वरना इसका वबाल आपको दुनिया में भुगतने की नौबत आएगी। आपको दुनिया ही में इसकी सजा देखने के अंजाम आपको बहुत जल्द आ जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अपने बच्चों को बचपन से अकीदे तौहीद सिखाइए। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। इलाही, मैं इस मक्के वाली जमीन पर आकर रुक रहा हूँ, मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ, मुझे मेरी आने वाली औलाद को बुतों की पूजा से बचा ले, शिर्क जैसे अजीम गुनाह से तू बचा ले। अल्लाहु अकबर। ये बरकत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुआ की। जब याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल होता है, अल्लाह कुरान में नकल करता है सूरह बकरा की 133वीं आयत में, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत। क्या तुम याकूब के मौत के वक्त वहां हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। मेरे प्यारे बच्चों, जो तरबियत, जो अखलाक, जो किरदार मैंने तुम्हारे अंदर पैदा किए, बताओ मेरे मरकर चले जाने के बाद तुम दुनिया में किसकी पूजा करोगे? बच्चों ने कहा, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इस्माईला इब्राहीम इस्माईल व इसहाका इलाहा वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमीन। हमारे अब्बा, हम अपने उस रब की, हमारे बाप दादाओं के रब की, इब्राहिम इस्माइल और इसहाक के रब की इबादत करेंगे, मरते दम तक उसी तौहीद पर बाकी रहेंगे। अल्लाहु अकबर। हजरते लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते कहते हैं, इज़ क़ाल लुकमान लिइब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनैया क़ाल या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ये जान ले, जिंदगी में कभी अल्लाह की वहदानियत में शिरक ना करना। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह को ये कभी पसंद नहीं है। हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरते इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, काना यअमुरु बिस्सलाह, वो अपने बच्चों को नमाज की तालीम दिया करते थे, तौहीद का हुक्म दिया करते थे। इब्राहिम हो, इस्माइल हो, इसहाक हो, याकूब हो, हजरते लुकमान हो, कोई भी आप दुनिया के अजीम तरीन शख्सियत को देख ले, कुरान में जो मिसालें अल्लाह ने बयान किया, आपके बच्चे अगर हैं, बचपन से सबसे पहले अकीदे तौहीद क्या चीज है उनके जहनों में बिठाइए। आज बड़े फख्र से आप इंग्लिश गारमेंट उनको भेज रहे हैं, मकतब को नहीं भेजते। सोने की दुआ, जागने की दुआ, खाने की दुआ और जिंदगी गुजारने की दुआएं, और छोटे छोटे सूरे, यहां तक के इस्लामी दुआएं, नबी की सीरत, हर चीज अकायद और ये मकातिब के अंदर पढ़ाए जाते हैं। हम अपने बच्चों को मकातिब भेजे बिना डायरेक्ट इंग्लिश गारमेंट की जानिब रवाना करते हैं और ये समझते हैं कि हमारे बच्चे को ये दुआएं सूरे सीखने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब ये प्यारे बच्चे दीन की तालीम सीखने के बाद आपके लिए दुआएं मगफिरत करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके अकीदे तौहीद की वजह से आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज जिन इंग्लिश गारमेंटों में, चर्च स्कूलों में, गैर मुस्लिमों के स्कूलों में आप अपने बच्चों को ले जाकर छोड़ रहे हो, क्या आपने कभी उन स्कूलों के प्रेयर को देखा है? हमारा बच्चा जाकर तो बैठ गया गैर मुस्लिमों के स्कूलों में, चर्च स्कूल में, यहाँ हाई एजुकेशन है। अरे भाई जरूर डालिए, हम रहते हिंदुस्तान में हैं, हमारे अतराफ अकनाफ ऐसे ही एजुकेशन के स्कूल कॉलेजेस हैं, जरूर भर्ती कीजिए। क्या आपने उन स्कूलों के सुबह के प्रेयर पर गौर किया? हमारे बच्चे अपना प्रेयर, अपना शुरुआत, सुबह की ये शुरुआत किस अंदाज से करते हैं? हमारे बच्चों को उनके टीचर हाथ जोड़कर मूर्तियों के सामने और मंत्र के श्लोक पढ़कर, सर झुकाकर मूर्तियों के सामने कुछ श्लोक पढ़ाए जाते हैं और सुलेब के सामने
हमारे बच्चे हाथ जोड़कर वहां मूर्तियों की ताजीम करते हुए अपना प्रेयर शुरू कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा दुनिया का इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। वकान अबवाहु यहूदियन औ मजूसियन औ नसरानिया, लेकिन उसका बाप उसे यहूदी, नसरानी, मजूसी बना देता है। भले ही तुम मुसलमान माँ बाप होंगे, आपके घर में इस्लाम का नाम लेने वाला बच्चा अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान होगा, लेकिन जिस गारमेंट में वो जा रहा है, जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है, वकाना उस्ताजुहु यहूदियन औ मजूसियन औ नसरानिया, लेकिन उसका उस्ताद उसे यहूदी, नसरानी और मजूसी बना रहा है। उसके जहन में बचपन से उसके दोस्तों का बर्थडे होता है, वो लाकर चॉकलेट बांटते हैं, उसे मालूम कराया जाता है कल तेरा भी बर्थडे आएगा, जिस तरह दूसरों के चॉकलेट तू खा रहा है, कल तेरे बर्थडे पर तुझे भी दूसरे दोस्तों को चॉकलेट बांटना है, तुझे भी अच्छा यूनिफॉर्म पहन के आना है, तुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाना है और बर्थडे का केक लाकर तुझे बर्थडे पार्टी मनाना है। बताओ, ये यहूदों नसरानियों का कल्चर क्या इस्लाम ने हमको दिया? इन कॉलेजों ने दिया, इन स्कूलों ने दिया, और हमने हमारे बच्चों को बचपन से मोबाइल हाथ में थमा दिया। बच्चा जिद कर रहा, पहले ले बेटे मोबाइल, देख ले बैठ बेटे। बच्चा सर दर्द बन रहा, ज्यादा जिद्दां कर रहा, ये ले बेटे मोबाइल, मोबाइल हाथ में देके थमा देते हैं। बच्चा कुछ खाने की फरमाइश कर रहा, कुरकुरे लाकर देते हैं उसे। मसाला आइटम, नमकीन आइटम, ये गलियों में कूचों में छोटे मोटे कुरकुरों की, चॉकलेटों की जो दुकान होती, उसमें जितना भी जंक फूड, GUN के जंक फूड मिलता है बच्चों के लिए, सब जहर है, जहर। हम अपने बच्चों को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ले बेटे जा खा ले जा, लाकर दे देते हैं, हाथ में मोबाइल दे देते हैं। इसका अंजाम क्या हो रहा है मालूम आपको? 2 क्लिप बताऊंगा, मेरे ही वक्त में से मैं 2 क्लिप आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे सामने LED स्क्रीन नहीं है, मेरे पीछे वहां LED स्क्रीन है। आप तमाम हजरात तो नहीं देख सकेंगे, मेरी माई बहनें जरूर देख सकेंगी। ये क्लिप आप देखिए, प्ले कीजिए क्लिप को। प्ले हो रहा, प्ले। छोटा बच्चा मोबाइल देख रहा है, देख देख कर इस कदर दीवाना हो गया कि उसके हाथों में फिट्स की बीमारी की तरह आ गई। डॉक्टर खड़े होकर कह रहा है, यह बच्चा पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया। मोबाइल हाथ में देंगे तो अपने न्यूट्रल माइंड के साथ बैठेगा, मोबाइल जैसे ही काट लेंगे बिल्कुल अपाहिज की तरह यह बच्चा बीमार। ऐसे इंटरनेट पर बेशुमार क्लिपें हैं। और एक क्लिप है मेरे इस बयान के अंदर बताई जा रही है, भले ही आप मर्द हजरात ना देखें, हमारी माएं बहनें देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इबरत के लिए काफी है, क्योंकि मां का गोद बच्चों के लिए अव्वल मदरसा होता है, पहला मदरसा होता है। एक छोटी बच्ची को, 3 साल की बच्ची को कुरकुरे खिलाकर, जंक फूड खिलाकर उसका पेट इतना फूल गया, इतना मोटा हो गया कि उसके किडनियां फेल हो गई, उसके गुर्दे, लीवर खराब हो गए, उसके पैरों में पानी भर गया। छोटी नन्ही बच्ची के पैरों में से पानी निकल रहा है और वह डॉक्टर कह रहा है कि ये देखो, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, इस छोटी बच्ची को इस जंक फूड ने खिलाकर इसके पूरे बॉडी के मैदों को फेल हो गए और ये बच्ची मरने के आगार पर आकर खड़ी है। इसके वालिदैन खून के आंसू रो रहे हैं, ये बच्ची मरने के आगार पर खड़ी है। वो बच्ची तो मर गई, लेकिन हमारे बच्चों को स्लो पॉइजन हम दे रहे हैं, स्लो पॉइजन दे रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को कुरकुरे और गली के नमकीन आइटम मत खिलाइए, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल मत थमाइए। आप समझ रहे होंगे मेरा बच्चा कार्टून देख रहा है, उस कार्टून के अंदर क्या दिखाया जाता है आपको मालूम है कभी? छोटा भीम, एक कार्टूनी फिल्म जो बनाई जाती है। भीम हकीकत में गैर मजहबी लोगों का एक खुदा है, हम किसी के खुदा को बुरा भला नहीं कहते। उस कार्टून में एक ऐसा फिल्म बनाया जाता है, एक बस्ती पर किसी भूत प्रेत ने आकर हमला किया और छोटा भीम ने आकर उसे मारकर भगा दिया। हमारे बच्चे के माइंड में उस छोटे भीम कार्टून के जरिए यह बिठाया जाता है कि मुश्किलों से बचाने वाली जात छोटी भीम है, मुसीबतों को टालने वाली जात छोटा भीम है, यह भगवान जैसे काम करता है, यह हमारे मुसीबतों का रखवाला है। हमारे बच्चों को कार्टून लगाकर दे दिए, उनके माइंड में क्या
बैठ रहा है। यहूदी कैसे फिल्म बता बता कर हमारे बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी हमने तसव्वुर किया? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अपने बच्चों के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे सवाल करेगा। अपने बच्चों को अल्लाह की हिफाजत का मुतालिक बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्बास को कहते हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमात इहफज़िल्लाह यहफज़क, तो अल्लाह के मामलात की, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदुहु तुजाहक, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की हिफाजत कर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद को अपने सामने पाएगा। वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब भी सवाल करना है अल्लाह से सवाल कर, जब भी मदद मांगना है सिर्फ अल्लाह से मदद मांगा कर। यह जहन में बचपन से बिठाइए अपने बच्चों को। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, और एक बात बताना चाहता हूं, अपने बच्चों के सामने कभी भी वालिदैन झगड़ा ना करें, झगड़ा गाली गलौज ना करें। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के सामने झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं, पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता। बच्चा, मासूम बच्चा जो आपके घर में बैठकर वालिदैन की फाइटिंग देख रहा है, वालिदैन के जबान से निकलने वाली जबान दराज गाली गलौज सुन रहा है, आज वो बच्चा भले ही खामोशी से, मासूम निगाहों से आपके वो तमाम झगड़ालू और तमाम बदतमीजी बातों को अपने जहन और दिमाग में महफूज कर लेगा। स्कूल जाने के बाद अपने दोस्तों से ऐसे ही झगड़ेगा, अपने दोस्तों को इतनी ही गंदी गालियां देगा जैसे आप बड़े होकर अपने बच्चों को सिखाने जैसे झगड़े और गालियां बक रहे हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वला तज़रिबुल वजह, अपनी बीवी के चेहरे पर मत मारो। अपनी बीवी पर हाथ उठाने वाला कभी अच्छा शोहर नहीं होता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक दीनदार बच्चा जब वालिदैन के मरने के बाद अपने वालिदैन के नाम से सदका और खैरात देता है कि मेरे अब्बा के नाम से ये मस्जिद के लिए ताउन लीजिए, मेरे अम्मी के नाम से ये यतीम बच्चे की किफालत लीजिए, मेरे मरहूम वालिदैन के नाम से मैं कुआं खुदाना चाहता हूं, ये नेकी के काम करना चाहता हूं। आपको पता है खबर की दुनिया आला इल्लियीन के जैसी नेमत और जन्नत के आला मुकामात में जहां आपके वालिदैन को अल्लाह ने रखा था, अचानक उनको अल्लाह ताला ऊंचे दर्जे पर बिठा देता है। वो वालिदैन सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह, हमारी कौन सी नेकी की वजह से तूने हमको ऊपर कर दिया? हमारे आमाल के मुताबिक हमको यह दर्जा तू अता किया था, आज तूने या अल्लाह हमें ऊपर का दर्जा दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, तेरी नेक औलाद तेरे नाम से दुनिया में सदका और खैरात कर रही है, जिसकी वजह से जन्नत में मैं तेरे दर्जात को बुलंद कर रहा हूं। अल्लाहू अकबर। आज हमारे माँ बाप अगर किसी मदरसे में स्कूल में अदब सिखाने के लिहाज से जर्रा अगर बच्चे को अगर मार दिए, उस्ताद ने हिफ्ज़ कुरान में थोड़ा डांट दिया, थोड़ा मार दिया, फौरन आकर उस्ताद पर कंप्लेंट कर देते हैं कि हमारे बच्चे को मारे कैसा, हमारे बच्चे को छीए कैसा, हमारे बच्चे को आपने डांटा कैसा। मेरे भाइयों, इस स्टेज पर बैठने वाले सारे उलमाए किराम के बारे में नहीं, दुनिया के जय्यद उलमा के बारे में कहता हूं, चाहे वो इमाम हरम क्यों ना हो, बगैर उस्ताद की डांट और उस्ताद की मार खाए बिना कोई इंसान अपने अंदर इंसानियत को नहीं जगाता। हर उस्ताद की डांट और उस्ताद की मार, उसका अदब और उसकी तादीब होने के बाद ही इंसान के अंदर अखलाक, आदाब, इंसानियत आते हैं। एक कांच के टुकड़े को जब तक तराशा नहीं जाता वो हीरा नहीं बनता। मेरे भाइयों, उस्ताद पर आप तंबीह करना, उस्ताद पर कंप्लेंट करना, ये ऐसे ही है कि आप हमारे बच्चे को इंसान नहीं हैवान बनाइए, ये कहने के मुतरादिफ है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि कोई उस्ताद बच्चों को जंगली की तरह मारे। हद से ज्यादा मारना भी इस्लाम में जायज नहीं है। अदब सिखाने के लिए, डांट रखने के लिए, उसे अदब और तादीब सिखाने के लिए एक दो मार की वो तंबीह कर सकता है, जिस पर बदन पर निशान ना आए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अगर बच्चे नेक रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर वालिदैन नेक रहेंगे, अल्लाह ताला इनके औलाद के ईमान की अल्लाह हिफाजत करेगा। जैसे
खिजर अलैहिस्सलाम के पास मूसा अलैहिस्सलाम मिलने आए, एक दो यतीम बच्चों की दीवार को मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खिजर अलैहिस्सलाम ने खड़ा किया तो बयान फरमाया वकान अबूहुमा सालिहा, इनके वालिदैन नेक थे जिसकी वजह से अल्लाह की जानिब से यह हुक्म था कि मैं यहां दीवार कायम करूं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, याद रखो अपनी औलाद के दरमियान कभी बेजा लाड़ और प्यार में ऐसा मुजाहिरा, ऐसा माहौल मत खड़ा करो जिससे आपके घर का माहौल बिगड़ जाए। याद रखो अल्लाह के नबी बयान फरमाते फर्ज नमाजें आप मस्जिद में अदा करो लेकिन सुन्नत नमाजें आकर घर में अदा करो। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया अगर आप सुन्नत नमाजें घर में पढ़ोगे, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके आजू बाजू रहने वाला आपका मासूम बच्चा आपके साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा, वो भी नमाज़ी बनेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ने पर उनको मारो। नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि आप अपने बच्चों को बचपन से दीन की तालीम दो। अगर बच्चे को नेक माहौल मिला, हमने अपने बच्चे को छोड़ दिया, ये नहीं देखा हमारा बच्चा गली में किसके साथ खेल रहा है, कैसे बच्चों की सोहबत इख्तियार किया है, हमने कभी गौर नहीं किया, बस छोड़ दिया हमने। अब बच्चा बचपन में ऐसे वैसे पोखरी बच्चों के साथ रहते हुए बिल्कुल यहां तक के गली कुची वाली 3rd क्लास लैंग्वेज सीख लेता है, गालियां सीख लेता है, गाने सीख लेता है, घर में आकर गाने गाता है, गालियां देता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं। नबी का हुक्म क्या है? बुखारी की हदीस है, जब आपके बच्चे बोलना सीखे तो सबसे पहले उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। लेकिन हम क्या सिखाती? एक म्यूजिक लगाकर बैठ गए, फिल्म देखकर बैठ गए, हमारे बच्चे भी हमारे बाजू फिल्म देख रहे हैं। हमने अपने बच्चों को बचपन से टीवी सीरियल में फिल्में सिखा दिया, नाच गाने बता दिया। अब वो बच्चे जो हमारे साथ बैठकर फिल्मी नाच गाने देख रहे हैं, आगे चलकर फिल्मों में नाचने वाले, टिकटॉक वीडियो बनाने वाले और दुनिया की अय्याशी करने वाले नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे? हमने अपने मासूम बच्चियों को ऐसे नीम उरियान कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। नीम उरियान कपड़े जो फिल्म रिलीज होकर आएगी, जो सीरियल हिट होगा, वही सीरियल का कपड़ा हम अपनी मासूम बेटियों को खरीद कर देंगे। आस्तीन नजर आ रहा है, सीना नजर आ रहा है, लेगिंग्स नाम की एक ऐसा कपड़ा जो नीचे शलवार के तौर पर पहनता जाता है, चुस्त लिबास लेगिंग्स नाम का, वो लेगिंग्स कपड़ा पहनाया जाता है। टी शर्ट पहनाते हैं, जींस पैंट पहनाते हैं अपनी बच्चियों को, नीम उरिया कपड़े बचपन से सिखाते हैं, बचपन से पढ़ा हमने उनको पहनाया और बड़े होने के बाद हम कहते हैं मेरी बेटी पर्दा कर। बेटी कहां से करेगी बेटी? आपने बचपन से जो नीम उरिया कपड़े पिना कर, लेगिंग्स पिना कर, छोटे छोटे कपड़े पिना कर जो आदत डाले थे, बड़े होने के बाद सारा बदन ढाक कर हया के साथ पर्दा करो, कैसे करेगी वो बच्ची? बचपन से उनके अंदर हया पैदा कीजिए, बचपन से उनके अंदर हया पैदा कीजिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने बच्चों को हमेशा हलाल लुक़मा खिलाते रहिए। हलाल लुक़मा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि इंसान ला तदखुलुल जन्नह मन गुज़िया बिल हराम, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम लुक़मे से अपने पेट को पालेगा, अपने बीवी बच्चों को पालेगा, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी के दरबार में हसन इब्न अबी तालिब एक मर्तबा एक नीचे पड़ी खजूर को उठाकर मुंह में रख लेते हैं। जामे तिर्मिजी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन कहते हैं किख किख अमा तअलमु अन्ना ला नअकुलु सदका, प्यारे बच्चे, ऐ मेरे नवासे, तुम थूको और खाए करो। यहां तक कि एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने उंगली डालकर उसके हल्क से वो सदके की खजूर को आपने निकाल दिया और आपने कहा क्या तुझे नहीं मालूम कि सदका हम पर हराम है? हो सकता है ये खजूर सदके का हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है। हम अपने बच्चों को संगे में पैसा लेकर खिलाते हैं, बैंक से लोना लेकर खिलाते हैं, घरां को लीज में रखकर खिलाते हैं और मुत्तू फाइनेंस गोल्ड में यहां तक के सोना गिरवी रखकर खिलाते हैं, चिट्ठियों के नाम पर सूदी कारोबार करके खिलाते हैं और पता नहीं कितने सूद के धंधे हमने बना लिए और ये समझते हैं हम अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को सही तरबियत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, अपने बच्चों को फिल्मी माहौल मत बताइए, बल्कि अल्लाह के नबी की सीरत, सहाबा की सीरत बताइए।
सऊदी अरब में एक स्कूल के अंदर एक बहुत बड़े प्रोफेसर वहां बच्चों का मुआयना करने के लिए आए। हर बच्चे से वो इंटरव्यू में पूछ रहे थे कि ऐ प्यारे बच्चे, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? किसी बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी बच्चे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी बच्चे ने कहा मैं लॉयर बनूंगा, किसी बच्चे ने कहा मैं टीचर बनूंगा। लेकिन एक बच्चे ने उठकर कहा मैं सहाबी रसूल बनूंगा, मैं सहाबी बनूंगा। उसके बच्चे की बात सुनकर वो बहुत बड़े प्रोफेसर दंग रह गए और ये कहने लगे ये तुम क्या कह रहे हो? सहाबी बनना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जब भी मैं रात में सोता हूं मेरी माँ मुझे एक सहाबी की सीरत सुनाती है। कितनी प्यारी है उनकी सीरत, क्या कुर्बानियां हैं उनकी। अल्लाह अकबर। जब से सहाबा और सहाबियात की सीरत को मेरी माँ ने हर रात को मुझे सुनाना शुरू किया, मेरे दिल में यह तमन्ना जाग गई मैं भी बड़ा होकर सहाबी बनूंगा। अल्लाह अकबर। वो प्रोफेसर कहते हैं अगर इस बच्चे का मैं जवाब ना सुनता ये स्कूल में बंद कर देता। सिर्फ इसी बच्चे की वजह से इस स्कूल को मैं जारी और सारी रखना चाहता हूं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आपको चंद असलाफ के वाकयात बताकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। अल्लामा इकबाल की वालिदा अपने जेवरात को बेचकर एक बकरी को खरीदी थी जिनके दूध को पिलाकर अल्लामा इकबाल को उन्होंने बड़ा किया। शेख अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह बचपन में छोटे बच्चे हैं, तालीम हासिल करने की नीयत से जा रहे हैं। माँ 40 दिरहम को बगल के नीचे झुब्बे में अंदर रखकर सी देती है। डाकुओं का काफिला लूट मार करके सारे काफिले को लूट लेता है। लेकिन अब्दुल खादर जिलानी को एक चोर पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई माल है? वो कहते हैं हाँ 40 दिरहम है। तलाशी में देखने पर नहीं मिलता। वो कहते हैं मेरी माँ ने यहां छुपा रखा है। वो निकाल कर दंग रह जाते हैं। अगर तुम चाहते झूठ बोलकर अपने दिरहम बचा सकते, लेकिन तुमने सच क्यों कहा? मेरी माँ की नसीहत थी कुछ भी हो जाए मेरे प्यारे बच्चे कभी झूठ ना बोलना, यही तालीम थी, इसीलिए मैंने सच कह दिया। इस एक सच ने उन चोरों और चोरों के काफिले को तौबा करके नेक जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दी। मेरे भाइयों, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा, जब इमाम शाफई पैदा हुए, यतीम पैदा हुए, वो अल्लाह से दुआ करते हुए अपने बच्चे को मक्का रवाना करती है ताकि उलमा की सोहबत में मेरा बच्चा बैठे और उलमा की सोहबत में इल्म हासिल करे। आखिरकार बड़े होकर वो इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह वक्त के जय्यद इमाम बनते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह ये भी यतीम पैदा होते हैं। इनकी वालिदा रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त अपने बच्चे को जगाकर अपने बाजू खड़ा करती थी, कुरान सिखाती थी। 9 साल की उम्र में इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अहलुस सुन्नह वल जमा 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन जाते हैं। यहां तक कि इमाम अहमद इब्न हंबल जब मदीने में एक बहुत बड़े इमाम और आलिम मुहद्दिस बनकर बैठते हैं, इनके दर्स में बैठने वालों की तादाद 5000 लोग, 500 लोग तलबा तो इनके हदीसें नकल करते थे, 4500 लोग इनसे अदब, इल्म, अखलाक सीखने के लिए आते थे इमाम अहमद इब्न हंबल के पास। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, मोहम्मद इब्न इस्माइल, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जब पैदा हुए और इनके पैदाइश के चंद दिनों के बाद, मासूम बच्चे थे, इनकी बीनाई चले गई, ये नाबीना हो गए। इनकी वालिदा रात के तहज्जुद में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती, कहती मेरे अल्लाह मेरे बच्चे की बसारत लौटा दे, मैं मेरे बच्चे को आलिम दीन बनाना चाहती हूँ, वक्त का, जमाने का, ऐ अल्लाह तेरे दीन का खादिम बनाना चाहती हूँ। माँ की दुआओं ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में वो असर किया कि नाबीना हुआ बच्चा अल्लाह ताला इनकी बीनाई लौटा देता है और इनकी माँ की तरबियत, असातिज़ा की रहनुमाई से वक्त के इमाम, वक्त के मुहद्दिस, अल्लाहु अकबर, इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह तैयार होते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सऊदी अरब का एक शख्स एक फिलिपीनी औरत से निकाह करता है और मरते वक्त अपने बच्चों को बुलाकर वसीयत करके कहता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपनी जिंदगी में एक फिलिपीनी औरत से निकाह किया था, तलाक मैंने नहीं दिया, मैं मर जाऊंगा, मेरे तरके का एक हिस्सा फिलिपीन के फला इलाके में
تمہاری میندری ماں رہتی ہے میرے ترکے کا حصہ پہنچا دینا ورنہ اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا. باپ مر گیا. بیٹا باپ کے ترکے میں 8 لاکھ ریال لے کر فلپین اسی ایڈریس پر جا کر اپنی والدہ سے مل کر معلومات کر کے وہ رقم بہت بڑی رقم دے کر آ جاتا ہے. کئی سالوں کے بعد دوبارہ فلپین جاتا ہے. جب وہ گیا اپنی ماں کی حالت دیکھا, بڑی خستہ حالت, بڑی غریبی حالت اور بڑی ہی مجبوری حالت میں وہ زندگی گزار رہی ہے. 8 لاکھ ریال اپنے شوہر کا ترکہ, میرے باپ کا ترکہ, یہ لیجیے بلکہ والدہ کو دے کر آ گیا. چند سالوں کے بعد خیر خیریت لینے جب فلپین واپس گیا, کیا دیکھتا ہے ان کی والدہ اسی حالت میں ہے, اسی خستہ حالت میں, غریبی حالت میں ہے. بیٹا پوچھتا ہے ماں یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ ابھی چند سال پہلے میں نے آپ کو 8 لاکھ ریال ترکے میں دیا تھا, پھر بھی تم غریب زندگی گزار رہی ہو. وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہے اور بتاتی ہے یہ دیکھ میرے بچے, یہ بہت بڑا مدرسہ, یہ بہت بڑا مسجد جو اپنے شوہر کے نام پر سارے پیسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر دین کا خلا انہوں نے قائم کیا تھا. وہ دکھاتی ہے میرے بچے, میرے شوہر کی دولت کی مجھے آس نہیں تھی, میں نے میرے شوہر کا سارا ترکہ ان کے آخرت کے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد اور مدرسے کی شکل میں خرچ کر دیا, ایک بھی روپیہ اپنے ذات کے لیے نہیں خرچ کیا. یہ بیٹا دیکھ کر اپنے سعودی عرب آتا ہے, بھائی بہنوں میں کہتا ہے کتنی افسوس کی بات ہے, ہم نے اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کیا, ہماری میندری والدہ نے سارا ترکہ ہمارے باپ کے نام صدقہ جاریہ میں مسجد و مدرسہ قائم کر دیا. اسی رات سارے بچوں نے 5 ملین ریال جمع کر کے پھر اپنے والدہ کے نام روانہ کر دیتے تاکہ وہ اس ادارے کو آسانی سے چلا سکے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, میری بات ختم ہونے کو ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی پیاری بیٹی کو نصیحت کرتے کہتے ہیں میری بیٹی زندگی میں سونے کے زیورات پہننے کی خواہش مت کرنا. آج کل کے باپ ہوتے ہیں نا, میری بیٹی کو اتنے تولے سننا دے کو کر کو دینا, انہیں اتنے دیا میں اتنے دینا, میں اور زیادہ سننا دینا, اور زیادہ گاڑی بنگلہ دینا. نہیں نہیں, ابو ہریرہ کو دیکھیے اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری بیٹی سونا گولڈ پہننے کی ہرس مت کرنا, یہ سونا قیامت کے دن آگ کی شکل لے کر آئے گا. کیونکہ ہر عورت اللہ کی نعمت سمجھ کر سونا استعمال نہیں کرتی, کسی کو حقیر جتانے کی نیت سے بھی سونا استعمال کرتی ہے. اگر کوئی عورت اس نیت سے سونا پہنتی ہے کہ سامنے والی عورت کو حقیر جتایا جائے, وہ زیور کل قیامت کے دن آگ کی شکل میں اللہ تعالیٰ لا کر اسے عذاب پہنچائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر آپ کے بچے نیک ماحول میں رہیں گے دیندار اور نیک بنیں گے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ماحول اچھا نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ کافر بن گیا. لوط علیہ السلام کی بیوی کو ماحول اچھا نہیں ملا, وہ بھی کافروں میں سے بن گئی. لیکن آپ کے بچے کو اگر دیندار ماحول میں رکھو گے آپ کا بچہ بھی مثالی بچہ بن کر دین کا خادم بنے گا. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں, الہی ہم کو اپنی اولاد کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اولاد کو نیک توفیق عطا فرما. جس نیک ارادے سے اصلاح معاشرہ اس کانفرنس کو انعقاد کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ انعقاد کرنے والوں کو اپنے مقاصد کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اور ہم کو اللہ جتنے بھی علماء کرام کے خطابات سے دین کے اور اسلام کے ہیرے موتیوں جیسے نکات ہم سنیں گے, سماعت کریں گے, اس پر خود عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.